मेरा जवान बच्चा। 2 साल नाजायज ताल्लुकात के बाद महबूबा ने अपने आशिक को मुबैना तौर पर अपने शोहर के साथ मिलकर मार डाला। शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसने उससे कहा कि इसको रास्ते से हटाना होगा। 28 साला मकतूल मुदस्सिर के वालिद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्हें कब पता चला कि मुदस्सिर की तबीयत ख़राब हुई है और उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दसन जी किसी बोतल पिवाई है, बोतल है जहर पिवाई है ना किसी ने चूं तो उस नाल उनकी तबीयत खराब हो गई है जी। तो प्राइवेट हस्पताल गया है, उत्थे उनकी तबीयत नहीं सही हुई। फिर वो जना हस्पताल गया 2 दिन उत्थे जिंदा रहा, तबीयत उनकी नहीं सही हुई, इंतकाल कर गया। होया की सी, कित्थे सी मुदस्सिर ते किदे कोल गया सी? वापटा टाउन काम करदा सी, कोठी ते सिक्योरिटी गार्ड लग्गा होया सी। किदे कोल मिलन गया सी? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਖਾਤੂਨ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਦੱਸਿਰ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਆਈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਗਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਟਗਿਆ। ਮੁਦੱਸਿਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ? ਪਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਵੇਖੇ ਆਏ, ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 4 ਹਨ, 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੁਦੱਸਿਰ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ? ਪਿੰਡ 117 ਨਵਲ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਦੱਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਠੀ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬੋਤਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉਂਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਐਲਰਜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਤੇ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫਾਇਆ ਰਾਈ ਉਹ ਲੜੀ ਖੜੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਦੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅੱਬੂ ਤੇਰਾ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਉਸ ਆ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਆਰ ਖਰਾਬ है, वो गल नहीं कर सके। इनके ताल्लुकात 2 साल पहले से चल रहे थे। उन ताल्लुकात का इसके शौहर को पता चल गया। इसके शौहर ने बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब उस पर बीवी ने माफ़ी तलाफ़ी की और बीवी ने कहा कि जी जो भी आप कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन मुझे तलाक ना दें। जिस पर जो मुल्ज़िम है उसने उससे कहा कि इसको रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद इन्होंने ये प्लान किया और ये सारी वारदात की। प्लान किस तरह किया? क्या चीज़ उसको पिलाई ऐसी जिससे उसकी हालत गैर हुई और उसके बाद वो अस्पताल गया और वहाँ पर उसका इंतकाल हो गया? हुआ इस तरह कि ये पहले ये लोग साहिवाल में रह रहे थे। ये जो लड़का था जो मकतूल है, ये मुलाजमत करता था इधर वापडा टाउन में। तो इन्होंने जब ये इरादा किया तो ये लोग बाकायदा इस प्लानिंग के तहत लाहौर शिफ्ट हुए और पहले इन्होंने ठोकर में एक मकान कुछ अर्सा 15-20 दिन किराए पे लिया और उसके बाद ये इस मकान में शिफ्ट हुए। और इन्होंने प्लानिंग इस तरह की कि बीवी थी जो ये मुल्ज़िमा है, इसने उसको एक दिन सुबह मिलने के लिए बुलाया अपने घर के ऊपर और ये बाकायदा दोनों मियाँ और बीवी राब्ते में थे उसके। और सुबह 8:15 बजे से जब हमने उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले और मुल्ज़िमा की मल्टीपल राब्ते हैं मकतूल के साथ भी और अपने शौहर के साथ भी, वो एक एक पल की एक एक मोमेंट की ख़बर अपने शौहर को भी दे रही थी। इनका प्लान ये था कि जी इसको ये बुलाएंगे और ये इसको कोई जहर वाली चीज़ किसी मशरूब में पिलाएगी और उसके बाद जो है वो इस तरह का बहाना करेगी कि मेरा शौहर वापस आ रहा है घर पे तो तुम चले जाओ, और वो चला जाएगा और बाद में उसकी डेथ वाक़ हो गई। हुआ भी इसी तरह से कि वो जो लड़का है मकतूल वो मिलने आया सुबह इससे
और इसने उसको जो एक मशरूब जो कोल्ड ड्रिंक होती है गोरमे की, उसके अंदर इसने मिला के एक काला पत्थर जहर होता है जिसको केमिकल टर्म से PPD भी कहते हैं, जो डाई के लिए इस्तेमाल होता है, वो इसने मिला के इसको पिलाया। उसके बाद ये किचन में गई है ग्लास रखने के लिए और वहाँ पर इसने अपने शौहर को मैसेज दिया है कि तुम मुझे कॉल करो, कॉल करके कहो कि मैं घर आ रहा हूँ। तो उसी तरह से हुआ, शौहर ने कॉल किया, उसने कहा कि मेरा शौहर आ रहा है और इस पर वो लड़का वहाँ से चला गया। और लड़का जब गया है वहाँ से निकला है बाइक पर, तो कुछ दूर जाके इज़मी टाउन के करीब जाकर उसकी जब थोड़ी सी तबीयत उसे इरिटेशन महसूस होनी शुरू हुई, क्योंकि इस पॉइज़न में ये होता है कि जो आपकी एयरवेज़ हैं वो सबसे पहले वो फूलना शुरू हो जाती हैं, स्वेल होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है उसमें। तो इसको कोई इरिटेशन शुरू हुई तो उसने कॉल किया उस खातून को कि तुमने मुझे क्या पिलाया है, कहीं ये कोई एक्सपायर्ड ड्रिंक तो नहीं थी। तो उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो नॉर्मल ड्रिंक पिलाई है। ये 20 तारीख का वक़्त है, 20 सितंबर का, पिछले साल का 2025 का। फिर 2 दिन इसकी तबीयत ख़राब रही है, ये जिना हॉस्पिटल में एडमिट रहा है और अल्टीमेटली 22 को इसकी डेथ हो गई। जो मुलजिम है उसके शोहर को कब पता चला कि उसकी बीवी के और मकतूल के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जिसके बाद उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो या फिर तुम उसके साथ चली जाओ? इसके कत्ल से 3 महीने पहले इसके शौहर को पता चला, जिसके बाद इनकी लड़ाई भी हुई, जो सारी तलाक वाली बात भी हुई, और उसके बाद ये फिर लाहौर। तो मकतूला और उसका शौहर अलग रहते थे, जो उसको पता नहीं चल सका, और जो मकतूल था वो मुलजिमा से मिलने के लिए आता था? नहीं, ये साथ रहते थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो ख़वातीन के होते हैं वो उसकी गैर मौजूदगी में उससे मिलती थी, कभी कभार जो उसका गाँव है वहाँ जाकर मिलती थी, वो एक ही घर में रह रहे थे। जिस तरह जब पुलिस ने इनको पकड़ा, ये लोग उसी वक्त मान गए थे कि इन्होंने ही इसको जहर दिया है और उसके बाद इसकी हालत गैर हुई है और ये जहाँ भाग हुआ है, या फिर ये मानने के लिए तैयार नहीं थे? जितनी अनडिनाइबल प्रूफ हमारे पास आ गया था, बिकॉज इनिशियली तो आपको पता है कि इस पे FIR भी अभी फरवरी में हुई है, क्योंकि इनिशियली तो 174 की कार्रवाई हुई थी, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, कोई फिजिकल मार्क्स ऑफ वायलेंस नहीं थे इसकी बॉडी के ऊपर जब इसको दफनाया गया है। वो तो जब PFS से रिपोर्ट आई है और उसकी बेसिस पे पोस्टमार्टम में कंक्लूड हुआ है कि ही हैज़ बीन पॉइजन्ड, फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले, क्योंकि जो मकतूल था उसकी फैमिली को भी नहीं पता था कि ऐसा कोई मामला चल रहा है, तो उनके भी वहम गुमान में नहीं था, वो इनको जानते नहीं थे। फिर जब पुलिस को ये सारी चीज़ पता चली, CDR को हमने एनालाइज़ किया, तो फिर पुलिस ने उनके लवाहिकीन को बताया कि आप आके FIR करवाएं, इसका तो कत्ल हुआ है। जब उनके सारे मामलात पता चल गए तो हमने फिर उनको बुला के इंटेरोगेट भी किया, और जब पुलिस की इंटेरोगेशन में उन्होंने कन्फेस भी कर लिया था।